Okay, so today's exercise that we'll be learning is user scenario and storyboarding. So there are two exercises that we'll be learning, okay? Yes, just a minute. Okay. We'll understand what user scenarios are, how to create user scenario. Again, this is a very important exercise when we map user journey. How to map user journey, we are also going to learn that probably in next week, we'll be learning it. But till user scenario, as I said, we are going to mark each and every step that a user is going to take on your application, and we are going to evaluate their each and every step, okay? All the steps. So we'll be learning about that today, user scenarios. And after that, there is a very short exercise that is needed to be done, which is called as user storyboarding. Okay, so storyboarding is something like, let's say that will be doing scenario, we'll be creating a scenario like a story. Before getting into the actual exercise, we'll be having a scenario ready, a story ready, and that story we will take and create a, you will see, we'll create a, comic like stuff. You might have read comic books and all. You might know how illustrations, and just behind that or just below that, we have a narration of story. So you're going to kind of explain your story of your users through the storyboarding exercise. I'll be giving you some examples so the idea will be very clear to you how that thing is also done. All right, so we'll get into user scenarios. Before, why is another person absent? Like, Kajal, where's your friend? एक्चुअली मैम उसने मुझे कॉल किया था पर मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाई। आई गेस उसने बताने के लिए पता नहीं मुझे अभी। Okay, so whatever is the reason that if he is absent, please ask him to convey it to the admin, Gaurav probably, so that it would ओके be, ओके। yeah, just give a reason ठीक है मैम। of the absentee. हाँ बताने बोलती हूँ मैं। Okay, great. So let's get into understanding user scenarios. Can you tell me what do you understand by this term, scenarios? Again, it's a very basic English term, scene or सिनेरियो, scene, कंडीशन, condition. Okay, इन्वायरमेंट। environment. Okay, what else? Hello. Yes. इसके लिए let's take an example. Suppose that you are watching a film. You like film, like अभी आप सब लोग ही movies तो देखते ही होंगे. So for Yes, example अभी yes. जैसे ये जवानी है दीवानी री-रिलीज हुई है. अपन ने almost पूरी की पूरी मूवी सबने देखी ही है, correct? So अगर मैं बोलूँ कि ये जवानी है दीवानी is my favorite movie, and in that entire movie my favorite scene from ये जवानी है दीवानी is the part when they go to the Manali trip with their friends. I love how the scenes are created over there. I love how they showed friendships and bondings and love and all happening with the main characters. So I love that entire part of a movie. Okay? So when I say that this is my favorite part, I'm talking about a particular scene from the movie, correct? I'm not talking about the entire movie. I'm talking about some scenes. Maybe in that Manali trip also, I might say that I love the jokes and I love the fun that they had when they were trekking and all. So in that also, I'm niching it down to a particular scene, correct? So this is what we are going to talk about. We are going to create scenarios. Now, in terms of user scenario, now you might have guessed कि user scenario मतलब, of course, we are going to talk about our users, right? तो यस। ये सिनेरियोज के बारे में कैसे बात करेंगे? तो अभी we have lot of users. You have created persona exercise. That means you have accumulated all the like let's say 10 people into creating one single personality. So we are going to take one of their experience from the entire application.
For example, you have urban company application. Have you ever ordered any service from urban company? No, ma'am. No. यस, मैंने किचन क्लीनिंग वाला सर्विस लिया था उनका। ओके, ग्रेट। सो अभी अर्बन कंपनी पे बहुत सारे यूजर्स आएंगे, करेक्ट? अभी जैसे काजल ने किया है किचन क्लीनिंग का सर्विस, मैंने किया है पार्लर का सर्विस ऑर्डर, या फिर मैंने किया है सोफा सर्विस का ऑर्डर, या तन्मय किया है ऑर्डर लेट्स से फर्नीचर क्लीनिंग के लिए। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे यूजर्स है, बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। सो अभी इमेजिन करो कि ये सब एक मूवी में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो रहे हैं। उसमें से लेट्स से दैट वी टेक ओनली काजल्स एक्सपीरियंस। काजल ने जो किचन क्लीनिंग सर्विसेज ऑर्डर की है, विल टेक ओनली दैट एक्सपीरियंस एंड पुट इट इन आर एक्सरसाइज दैट इज यूजर सिनेरियो। तो आपको सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है यहाँ पे कि कितने कितने सर्विसेज लिस्टेड है। नो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन सच सिनेरियो। ठीक है? So that is what we are going to do in user scenarios. So this is a typically a persona. Again, it's persona. That means we are going to talk about one single user. Okay, जैसे काजल है तो काजल के बारे में ही बात करेंगे, उसको ही डिस्क्राइब करेंगे, उसके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके जो भी स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन पे, वो डिस्कस करेंगे। अभी ये जो एक्सरसाइज है ना, दिस इज मोर टूवर्ड्स द यूआई पार्ट, कि आप थोड़ा यूआई यहाँ से इमेजिन करना चालू कर देते हो। ठीक है, कि यूआई में क्या होगा, कैसा होगा, यूआई में पेजेस कैसे कैसे होंगी, यूआई में रोड मैप कैसा होगा एक यूजर का। अगर किचन की सर्विसेज ऑर्डर करनी है तो व्हाट विल बी द रोड मैप्स, what clicks user might take to complete, like to do that particular task, right? So we start talking about UI from here. So again, it's typically a persona that describes a realistic situation related to the design of a solution. So realistic situation again, आपको खुद को एक यूजर के शू में डालना है, मतलब you have to imagine a scenario from the perspective of a user, and then you have to like think about what steps a user might take, right? So that is more about scenarios. Again, let's understand ki what like few explanation. Again, I'll give you what exactly we are going to do in this scenario exercise, and after completing this theoretical part, we'll be getting into the exercise part. तो वो भी आपको करके दिखाऊंगी मैं पूरा का पूरा, ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए। ठीक है? So what is user scenario? They allow us to understand what user want and how they feel. Okay, again, it's the typical persona wali अपने पास information है. Again, this is a repeated information कि it will allow us to what exactly user wants and how they feel. Again, you can combine your persona and empathy mapping exercise and understand वो data आप यहाँ पे imagine कर सकते हो, या वो data ले सकते हो, उससे भी आप user scenario create कर सकते हो. Then it clarifies the true objectives of users. So true objectives, as we said, it's a realistic situation that we are going to imagine. You will be the user, you'll be acting as a user, right? तो ट्रू ऑब्जेक्टिव लाइक यूजर्स को एक्चुअली क्या चाहिए और वो किस स्टेप में वो सब चीजें हासिल करेगा या फिर जो भी है वो ऑर्डर करेगा. सो व्हाट आर द ट्रू टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजर्स आर, देन it concise and focuses on one part of experience. Now, as I again told you that पूरी मूवी चल रही होती है, अपन एक कोई एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे. सो इट अलाउज अस टू फोकस ऑन वन पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. अगर उसको ही अपन इवेल्युएट करेंगे तो अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम समझ में आते हैं, एंड वी कैन गिव अ वेरी potential solution to those problems. So one part of experience we are going to focus on. Then they foster empathy with users. Again, अगर आप इतना डिटेल में स्टडी करते हो यूजर्स को लेके, आप ये भी देखते हो कि उनके स्टेप्स कैसे होंगे और हर एक स्टेप को आप इवेल्युएट कर रहे हो, तो अगेन यू आर फॉस्टरिंग एम्पैथी टुवर्ड्स यूजर्स. तो आप सिंपैथी तो नहीं दिखा रहे हो, अगेन एम्पैथी आप दिखा रहे हो, यू आर एम्पैथाइजिंग विथ योर यूजर्स. सो दिस इज व्हाट सिनेरियोज आर फॉर. आपको आइडिया अभी पूरा क्लियर नहीं होगा,
जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा. सो अगेन एनीवेज इफ यू गेट एनी डाउट्स यू कैन स्टार्ट टॉकिंग. ओके. Okay, so we are going to explore and explain motivation and certain needs and behaviors. Again, motivation. अगर ये पॉइंट आपको पता है, मतलब नीड्स एंड बिहेवियर्स, अगेन ये पॉइंट अगर आपको, इफ यू कैन रिकॉल दैट वी हैव ऑलरेडी इवेल्युएटेड दिस इन यूजर research, we know what users needs are for now, and we also know the behavior of users. Okay, so it is again connected to the emotional state of user, so you already know the answers to this, or maybe you have information to this. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब अपन यूजर सिनेरियोज करते हैं तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स पेन पॉइंट्स. ठीक है, पेन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप, जैसे आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी व्हेन यू स्टडी दैट, वी मेजरली फोकस ऑन द वीकनेस ऑफ द कंपटीशन, कि इनका वीकनेस क्या है ताकि हम लोग उस पर काम कर सके, उसको बेहतर बना सके. करेक्ट. सो इसलिए अगेन पेन पॉइंट्स, ओवरऑल पेन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जब भी आप कोई शॉर्ट में भी कोई केस स्टडी आप बनाओगे तो मेक श्योर यू एटलीस्ट डू यूजर पर्सोना एक्सरसाइज. तो आपको पेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने के लिए मिलेंगे. आप अगर यूजर रिसर्च भी करते हो तो भी आप पेन पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हो. एक अलग से आप सेक्शन बना सकते हो वहाँ पे, just to write down that these are the frustrations of users when they try on the our competition application or website, and this is what we are going to solve. Again, अभी यहाँ पे कैसे होगा, in the scenario context, if you focus on pain points, that means will be, just a minute. Yes, when you focus on pain points, तो मतलब आपको पता है कि अगर यूजर को एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस अच्छे से समझ नहीं आ रहे, कोई सेलर है तो सेलर्स आर सेइंग कि वी हैव दिस सर्विस, वी हैव दिस प्रोडक्ट, बट एक यूजर को पूरे के पूरे जो मतलब प्रोडक्ट डिटेल होता है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. अगर वीगन प्रोडक्ट है तो केमिकल्स क्यों लिखे हैं इस पे, अगर वीगन प्रोडक्ट आपने बनाया, वीगन शैम्पू बनाया है, तो वीगन के हिसाब से आपने क्या क्या ऐड किया है. मे बी एक यूजर को उसके डिटेल्स नहीं मिल रहे, ही रियली वांट्स टू गेट इनटू कि मैं कौन से केमिकल अपने बालों में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो वो जानना यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मे बी दैट इज द पेन पॉइंट ऑफ यूजर, कि बाकी आप एप्लीकेशंस पे देखते हो तो ये सब चीजें क्लियरली लिखी नहीं गई है. करेक्ट. तो आपको फिर जो भी मतलब वो जो स्टेप आएगा कि जब यूजर प्रोडक्ट डिटेल्स देखेगा तो वहां पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि दिस आर द पेन पॉइंट्स एंड आई एम गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन, जहाँ पे यू कैन लाइक यूआई में ये सब सॉल्यूशंस आएंगे कि we can cater our UI to creating cards where we can just give detailed information of all the products and highlight करके बताएंगे कि what all stuff are used, ingredients are used. तो this way में इस मतलब इस तरीके से पेन पॉइंट्स जो है वो काम करते हैं. ठीक है. सो ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स पेन पॉइंट्स मोर. Then we have persona involved and the role. Okay, we have already done with the persona. Event leading up the scenario, particularly those that are created the need for this scenario and to be realized. Okay. Yeah, okay. So this is again like again a repeated information. We will not get much more closer into that. But this is something ये पता नहीं ऐसे क्यों दिख रहा है. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पेज व्यू. Okay, so I'll get into that later on. So when we talk about what are the benefits of a user scenario,
इसको करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स us with the information about users needs and wishes. Again, this is a repetitive information. Give us the correct context of use. So when we evaluate every single step, it will make you understand ki, how exactly users are going to how should I explain this? Okay, so this is more of a give us a correct context of use. Matlab, as I said ki you're going to have a realistic steps, realistic situation you're going to put in front of you. So that will give you a correct context of use. That will give you कि हाँ ठीक है, this all depends on clicks. So ये जो exercise होती है ये clicks पे depend होती है. So if you are on a home page, then you'll search for a product, that is a click. Then you'll search for product information, that is a click. So if you follow that roadmap, it will automatically give you the context of use कि इस way में एक user follow up करने वाला है and इसको अपन evaluate करने वाले हैं. Then it takes us after the real step of users when performing a task. Okay, so we just had a discussion on this. And this particular point is very important. It allows us to validate aspect of the design that we could have overlooked. तो कई बार ऐसा होता है ना कि we have when we are doing this case study, we are into so much of exercises कि पर्सोना कर रहे हैं, एम्पैथी कर रहे हैं, रिसर्च बना रहे हैं, तो इतने सब एक्सरसाइजेस होते हैं. एंड जब एक मेन इम्पोर्टेंट जो चीज होती है दैट इज कि पूरा इंफॉर्मेशन यूआई में डाल के उसका सॉल्यूशन यूआई में दिखाना, राइट. आपका यूआई एट द एंड ऑफ द डे आपका यूआई मैटर करने वाला है. आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके डिजाइन में, ठीक है. तो अपन इस पूरे एक्सरसाइजेस में बहुत वी गेट इनटू दिस एक्सरसाइज एंड वी गेट बिजी. सो समटाइम्स अपने को पता रहता है कि ये पर्टिकुलर XYZ यूजर का पेन पॉइंट है और इसका सॉल्यूशन अपने को एक यूआई स्क्रीन में देना है एंड यू नो हाउ टू गिव द सॉल्यूशन. बट when we get so much busy with the exercise, we overlook kind of that particular solution or that particular pain point. तो अगर अपन user scenarios बनाते हैं, then again it's a steps, right? The detailed steps that we are going to do. So अपने को फिर याद आ जाता है कि okay, this is the solution that we were talking about. And sometimes it so happens, like rarely it happens, but sometimes we do overlook some of the situations. तो इसलिए these are the benefits of user scenarios. And then we have how exactly we are going to write these scenarios. तो आप आपके जो भी टारगेट ऑडियंसेस है उसमें पर्सोना में अपने डाल के रखे हैं, तो वहां से अपन इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है. देन कंटेंट टू बी एनालाइज, डिफरेंट गोल्स एंड टास्क. तो अपन जब भी यूजर सिनेरियो चालू करेंगे ये एक्सरसाइज, इसके पहले वी आर गोइंग टू नोट डाउन द गोल ऑफ ए यूजर कि यूजर का गोल क्या है, ठीक है. कि मतलब वो कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाला है आपके एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट पे. तो वो अपन सबसे पहले लिखने वाले हैं. दैट कंटेंट वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड देन वी आर गोइंग टू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स. तो ये इवेल्युएट करने का एक फॉर्मेट होता है. एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो आपको दोनों तरफ से सोचना है, ठीक है. आप यूजर भी हो और आप एक डिजाइनर भी हो, तो आपको दोनों वे में ये पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू कंसिडर पाथ एंड फ्रिक्शन पॉइंट्स. सो फ्रिक्शन पॉइंट्स वो होते हैं जो पेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. सो wherever you think that this might be a potential pain point, so वहां पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो. तो आप वहां पे सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन देना है, ठीक है. तो आप वहां पे आइडियाज लिख सकते हो आपके, आप वहां पे कमेंट्स कर सकते हो कि मे बी ये प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन ये है. तो आइडियाज वहां पे बुट डाउन कर सकते हो. जो भी रफ डेटा आपके दिमाग में आता है कि if that XYZ is the friction point, okay, then we can have some potential ideas. So we are going to scrap it out, each and every idea, ठीक है. तो ऐसे में in this particular manner we are going to do this exercise.
ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द theoretical पार्ट. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, आस्क मी. मैम ये थोड़ा नहीं, आप ऊपर करोगे तो फ्रॉस्टर जो लिखा है यस, वो इसका मैं मीनिंग क्या होगा? दे they फॉस्टर foster एम्पैथी empathy विद। with users. अभी जैसा मैंने बोला, what do we understand by the meaning of empathy? It's when you care about a certain person, right? It's when यस you deal with all of their problems, correct? So यस। एक ये जो यूजर सिनेरियो है, दिस इज अगेन यूएक्स एक्सरसाइज ओनली, करेक्ट? एंड व्हेन वी से दैट कि पर एक मतलब आप जो भी स्टेप्स यूजर्स ले रहे हैं उसको आप इवैल्यूएट करोगे, उसको आप डिटेल में स्टडी करोगे, और उस पर्टिकुलर स्टेप्स पे अगर कोई पेन पॉइंट्स है, फ्रिक्शन पॉइंट्स है, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे, उनको एनालाइज करोगे, उनको पॉसिबल सॉल्यूशंस आइडियाज दोगे. तो आप अगर इतना सब कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, देन योर fostering empathy towards users, right? मतलब आप empathy दिखा रहे हो users के तरफ, तो ओके ओके। ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली हो ही जाता है. ठीक है, आप इतना इवेल्युएट करोगे तो इट हेल्प्स अस एम्पथाइजिंग विद द यूजर्स. ओके। यस. हम एम्पैथाइज करना लाइक किसी उसके लिए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? एम्पथाइज करना, लाइक ये जैसे जो हाँ. किसी यूजर को जैसे एम्पैथाइज करना, ये मतलब एक टाइप से ये पॉजिटिव है या फिर मतलब ये एक टाइप से नेगेटिव है? No, this is completely positive. This is completely positive. Everything we are doing is positive only. It can't go negative. नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं सकता. आपको क्यों लगा कि नेगेटिव हो सकता है? ये मतलब ऐसे ही मतलब मैं पूछ रहा था। Okay, okay, okay. No issues. So let's do exercise for the scenario. तो इसका एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. ओके, सो इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं आता है. लाइक इफ यू ट्राई टू सर्च यूजर सिनेरियो, तो इसका कोई टेम्पलेट आपको नहीं मिलता है. ठीक है, तो इसलिए आई वुड गिव यू सम टेम्पलेट, तो आप वो फॉलो कर सकते हो. ओके, फिर लाइक एज आई सेड, आपको जब यूजर सिनेरियो बनाने हैं तो यू शुड एटलीस्ट सेट योरसेल्फ सम गोल. ठीक है, तो अपन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं फ्लावर ऐप की. एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है ये, विच इज कॉल्ड एज फ्लावर ऐप, जिसपे आप फ्लावर्स बाय कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज एंड ऑल फ्लावर्स हो सकते हो वहाँ पे. एंड अगेन गार्लैंड्स एंड ऑल, अगर आपको ऑर्डर करना है किसी फंक्शन के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन्स के लिए, कोई डेकोरेशन है, मतलब इवेंट्स है वगैरह वगैरह, तो वो सब भी आप फ्लावर ऐप से ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, सो अभी यहाँ पे सिनेरियो बताना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द एक्सरसाइज, यू हैव टू हैव अ सिनेरियो स्लैश गोल, कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर यूजर्स, व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड ऑन योर एप्लीकेशन. कोई भी प्रोडक्ट है जो परचेस करना चाह रहे हैं. सो लेट्स राइट अ गोल. विल टेक अ गर्ल एज अ पर्सोना. ठीक है, आप वही पर्सोना ले सकते हो फिर से, आपका जो आपने बनाया है उसी को, उसी पर्सोना का नाम आप फॉलो करो यहाँ पे. सो लेट्स से देयर इज अ पर्सोना नेम प्रिया वर्मा. ओके, सो प्रिया wants to buy flowers for her mom's birthday. तो ये सिनेरियो है
there's a persona named Priya एंड उसके मम्मी का आज बर्थडे है एंड सिनेरियो यहाँ पे ऐसा है कि उस शी forgot to buy gifts for her mom and at the last moment she is sitting in her office and at the last moment she suddenly remembers कि भाई मैंने कुछ तोहफा नहीं खरीदा है. So that's why she is on Flowers app. She's going to go home it's evening time. She's gonna rush home and she wants to order a bouquet of flower for her mom's birthday. So that is how they are going to celebrate. So this is a scenario. ठीक है. Now, सिनेरियो में जाने के पहले ये एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप समझ लो. That is we are going to evaluate this user scenario under three important points. ठीक है. ये 3 पॉइंट्स आपको हर एक स्टेप पे इवैल्यूएट करने हैं. फर्स्ट इज यू गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस कि अगर यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई भी स्टेप हो तो अगर यूजर्स के कोई क्वेश्चंस है तो आप वो इवैल्यूएट करने वाले हो. देन नेक्स्ट थिंग इज कमेंट्स. आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टेप पे कुछ कमेंट्स देने हैं, यूआई रिलेटेड कमेंट्स, तो यू आर गोइंग टू डू कमेंट्स. एंड देन यू आर गोइंग टू हैव आइडियाज, योर ओन आइडियाज, कि अगर यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो यूआई में उसको बेहतर कैसे बनाए, उसके रिगार्डिंग आप यूआई को लेके कुछ आइडियाज उस स्टेप पे डालने वाले हो. ठीक है. Now, when you do user scenario, you have to first write down the steps that user might take on the application. ठीक है. So let's say first step is that Priya navigates to flower.com, or else she just directly open Flower app. ठीक है. तो ये उसका पहला स्टेप है. उसके बाद प्रिया selects the flower option in the menu. Priya selects the flower option in the menu. After that, she applies filter to select a particular flower. तो मतलब लेट्स से कि यहाँ पे जब ऐप ओपन होता है तो उसको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं. ठीक है. फ्लावर के साथ साथ देयर आर अदर डेकोरेटिव्स ऑप्शंस आल्सो. तो उसको डेकोरेटिव्स नहीं खरीदने हैं, उसको फ्लावर्स खरीदने हैं. तो उसको वहाँ पे फिल्टर दिखता है कि फ्लावर का फिल्टर डाल सकते हो. तो फिर अभी उसको बस फ्लावर के ऑप्शन आ रहे हैं. उसमें से शी अप्लाइज अ फिल्टर, सॉरी, ये पॉइंट पे बस वो फ्लावर सिलेक्ट कर रही है. आफ्टर दैट शी इज अप्लाइंग अ फिल्टर कि उसको एक सर्टन टाइप ऑफ फ्लावर्स ही चाहिए. मतलब उसको मैरीगोल्ड्स नहीं दिखने हैं, उसको ऑर्किड्स नहीं दिखने हैं, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं वो फ्लावर्स परचेज करने में. सो दैट्स व्हाई शी इज अप्लाइंग फिल्टर. देन शी सिलेक्ट्स अ बुके ऑफ रोजेस. ठीक है. शी इज इंटरेस्टेड इन रोजेस and thinks her mom might like it. क्योंकि बर्थडे है तो इसलिए she went with the roses. Now she checks details, like detail information, and looks out for delivery option. ठीक है. And then the last step is she places the order. Okay. So when I said कि scenarios में आप हर एक step evaluate करने वाले हो, so this is what I'm talking about. How is Priya navigating through the Flower app? उसके steps क्या है? तो आपको सबसे पहले उसके steps लिखने हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन, कमेंट एंड आइडियाज ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया है. नाउ
अभी ये तो बहुत इनिशियल स्टेप है, इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते अपन, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द होम पेज। तो लेट्स इमेजिन दैट प्रिया इज इन अ होम पेज और उसको वहां पे ऑप्शन मिलता है, तो शी सिलेक्ट्स फ्लावर इन द मेन्यू। ठीक है, तो अभी इसको इवैल्यूएट करना है। लेट्स से दैट कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं यहाँ पे कि अपन क्या करते हैं, व्हेन शी विल सिलेक्ट फ्लावर इन द मेन्यू, उसको अपन दिखाते हैं मोस्ट पॉपुलर फ्लावर ऑन द ऐप। कि मतलब ऐसा बहुत बार होता है ना, बेस्ट सेलर आपको दिखाई देते हैं, मोस्ट पॉपुलर आपको दिखाई देते हैं। तो इस वे में इट विल बी इजियर फॉर हर टू चूज अ फ्लावर। तो मोस्ट पॉपुलर भी देते हैं एंड बेस्ट सेलर भी, वी विल गिव बेस्ट सेलर फ्लावर्स। जैसे रोजेस हो गए या सनफ्लावर्स हो गए या ऑर्किड्स हो गए, देर आर सम कैटेगरी, देर आर सम स्पीसीज ऑफ फ्लावर जो ज्यादा बिकते हैं। तो उसका यूआई एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए लेट्स अगेन गिव हर सम सजेशंस कि भाई तुम पॉपुलर फ्लावर्स के साथ भी जा सकते हो, दिस इज व्हाट पीपल आर बाइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो इस वे में अभी आप भी मुझे बताओ, आई वांट दिस टू बी इंटरैक्टिव सेशन। आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से प्रिया का यूआई थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर कर सकते हैं, क्या आइडियाज डाल सकते हैं। फिर अगेन यूआई को लेके प्रिया को क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में। आप प्रिया के जगह पे रहो, सोचो कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लोकेशन पहले तो सेट करना पड़ेगा ना, कि एरिया वाइज फिर उसको शॉप्स और वो रिकमेंड कर सकते हैं पहले पेज पे। ओके, वी कैन बेस्ट। पुट कमेंट्स ओनली देन अगेन कि हम्म। ask her to select location. Good. क्योंकि हम कोई भी ऐप भी यूज कर रहे तो उसमें पहले तो लोकेशन डालना पड़ता है, फिर वो Correct. उस ऐप से। Correct. Correct. Priyaka, a very basic question that she will get is, will I get fresh flowers? हम्म। ठीक है, आप ये सब ना आप प्रिया सेज एंड प्रिया थिंक्स में भी आप देखो, एम्पैथी मैपिंग हम्म। को फिर से मतलब ये जो एक्सरसाइज होती है ना, ये बैक एंड फोर्थ रहता है। मतलब आपको हमेशा पीछे के एक्सरसाइज पे फॉल बैक होना पड़ता है, वहां पे क्या क्या लिखा है उससे आपको समझता है कि ओके अभी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे अपन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये आप सोचो। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट एनी यूजर्स विल गेट, विल आई गेट फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, तो अब अगर नाउ आपको इवैल्यूएट कैसे करना है, आप ये देखो। अगर यूजर का कोई क्वेश्चन है तो आपको अभी आइडियाज के फॉर्मेट में कुछ सॉल्यूशंस डालने हैं कि अगर उसको ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे फ्रेश फ्लावर्स मिलेंगे क्या, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दो कि आप मतलब जो फ्लावर्स के कार्ड्स होंगे वहां पे आप बताओ कि कौन सा फ्लावर लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स है। ठीक है, कौन सा फ्लावर आप ऐसे टैग बना सकते हो कि अभी अभी आया है प्रोडक्ट की फ्रेश फ्लावर्स इन द मार्केट। तो आप यूआई में जब भी आप यूआई यूएक्स राइटिंग करते हो तो वहां पे आप ये सब मेंशन कर सकते हो, रिसेंटली अराइव्ड फ्रेश फ्लावर्स, मॉर्निंग अराइव्ड एक फ्लावर्स। तो इससे फिर एक उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, यस तन्मय। एक कुछ ऐप्स में भी ऐसा भी दिखा है कि लाइक किसी वेबसाइट में जो कोई फर्स्ट ऑर्डर भी करता है तो उसको कुछ 5 या 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो एक वो भी यस कुछ बट यू सी, अपन ये अभी बहुत बेसिक, वो अभी होम पेज पे ही है। हाँ नहीं, होम पेज में ही मतलब आता है ना, ऐसे हाँ, फ्लैश आता है कि वो ओके ओके ये ओके 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 ओके, सो विल पुट दैट इन कमेंट। वी कैन गिव पॉपअप्स ऑफ ऑफर्स। पर्स। करेक्ट, हाँ वो होता है, करेक्ट। ठीक है, और कुछ थीम सजेशंस भी दे सकते हैं। जैसे हाँ ठीक है। कलर कलर कोई का फेवरेट कलर रिलेटेड कुछ थीम कर सकते हैं, या बर्थडे रिलेटेड या वैलेंटाइंस वीक रिलेटेड, जैसे फ्लावर्स का थीम रहता है। यस 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 हाँ यस कुछ एक लाइक, हाँ वैसे बंडल्स टाइप हाँ। जैसे होता है। एब्सोल्युटली राइट।
So we will give that over here. ये स्टेप पे आएगा वो, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेप पे है वो। She applies filter to select particular flower. Okay. तो अभी इस ये हाँ यस वहां पे यस भी गो ऐड कर अहेड। सकते हैं। नहीं, मैं बोल रही थी कि यहाँ पे वो दिखेगा तो वो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगी, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं वो चीज ना। ठीक है, सो यू वांट पुट एन आइडिया ऑफ कि वो शी कैन कस्टमाइज यस। हर बुके। या हम भी कुछ कस्टमाइज थीम रख सकते हैं वो ऐप पे, ऐसे मैं बोल रही थी। ओके, वो तो सो कर वी ही कैन सकती है, और हम लोग भी कुछ थीम्स रख सकते गिव हैं। हर थीम ऑप्शंस, हम्म। राइट? ठीक है, यस। अभी वो क्या कर रही है, अभी वो फिल्टर लगा रही है कि हम्म। मुझे बाकी फ्लावर्स नहीं देखने, अभी वो बस रोज का फिल्टर लगा रही है, उसको रोज के कलर्स, रोज के मतलब बहुत सारे टाइप्स हम्म। आते हैं, तो उसको अभी हम्म। ये सब दिखने वाला है। तो अपन इसमें भी बेस्ट सेलर कौन है वो बता सकते हैं कि रेड रोजेस आर सेलिंग आउट मोर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगेन ये कमेंट यहाँ पे फिर से आ सकता है। यस। और क्या हो सकता है? यस, सो कोई कस्टमाइज इज अ गुड ऑप्शन। उसके क्वेश्चंस क्या आएंगे ये स्टेप पे? एक तो डिले। हाउ मेनी फ्लावर्स ओके। will I get in one bouquet? हाँ, you were saying something? मैं डिलीवरी टाइम के बारे में सोच रही होगी वो, हाँ, कि अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो ये फ्रेश डिलीवर होगे कितने देर में कितने आया? टाइम में। तो Yeah, so right now though she is selecting flowers, so we'll put that delivery thing in the when she'll check out for delivery options ऐसा वहाँ ओके। पे अपन डालते हैं वो। ओके ठीक है। नहीं, तो नहीं, जैसे ये मैं चीज ये हम सोच रही फर्स्ट में भी रख सकते हैं मैम, ये चीज वैसे हाँ जैसे हाँ हाँ ब्लिंकिट, जैसे जैसे ब्लिंकिट मतलब ये चीज मार्केट करता है कि डिलीवरी इन 10 मिनट्स वगैरह करके, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है हाँ, कि इसमें वी यही है कैन लाइक डिलीवरी इन वन क्योंकि अगर आवर वो या टू फ्रेश आवर फ्लावर के बारे में सोच रही है, तो वो ऑर्डर करने के बाद अगर उसके पास लेट पहुंच रहे तो वो डाउट कर सकते हैं कि अगर ये कितने बराबर। टाइम में पहुंचेंगे, फ्रेश रहेगी या नहीं, ये क्वेश्चन तो आ सकता है सिलेक्ट करते टाइम। राइट आई राइट गेट। राइट, तो ओके। सो यहाँ पे है वो, शी चेक्स आउट फॉर डिटेल्स एंड लुक्स आउट फॉर डिलीवरी ऑप्शन। यस। सो यहाँ पे आएगा वो डिलीवरी टाइम का कि हम्म। रीच 10 minutes एंड ऑल। हम्म। एंड सीओडी या हाँ वो मतलब तो प्लेस ऑर्डर प्लेस कर। यस, तो मतलब डिलीवरी का आप जो भी बोल रहे हो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ओके। तो वो अभी जस्ट मतलब उसको ये कंफ्यूजन है कि कौन सा फ्लावर चूज करूँ मैं। ठीक है, यस। रोज यस। जाओ, रोज लू या सनफ्लावर लू। नहीं, अभी रोज का फिल्टर लगाया है उसने। हम्म। she applies filter to select a particular flower। हम्म। तो ठीक है, तो मे बी जब वो फिल्टर अप्लाई कर रही है, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन अगेन शी माइट गेट कि विच फ्लावर माय मॉम वुड लव और वुड लाइक, हम्म। राइट? हम्म। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि उसके मम्मी को कौन सा पसंद आ सकता है फ्लावर। हम्म। तो ये इस क्वेश्चन के लिए अभी हाउ मेनी फ्लावर्स विल आई गेट इन बुके, अगेन आप अगर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रहे हो तो वहां पे while customization you can give options of how many flowers will one bouquet hold, let's say 12 pieces or 24 pieces, हम्म। right? Even if it's a customization, तो फिर ये डेटा अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। अगर वो सनफ्लावर प्लस रोजेस कर देती है देन इट विल बी लाइक 12 पीसेस ऑफ सनफ्लावर, 12 पीसेस ऑफ रोजेस। तो ऐसा डेटा वहाँ पे स्पेसिफिक होगा ताकि उसको ये क्वेश्चन उसका सॉल्व हो जाए। And which flower my mom would have, like you can give her a suggestion of like suggest her best picks as per events,
तो मतलब आप ये सजेस्ट कर सकते हो आपके डेटा के हिसाब से कि हमारा डेटा ये बोल रहा है कि बर्थडे में लोग रोजेस लेते हैं, राइट? और अगर फंक्शन है तो पीपल गो विद जलबेरा एंड सनफ्लावर्स, ऐसा वैसा। तो अगर पिक्स आप सजेस्ट करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि बर्थडेज के लिए कौन से अप्रोप्रिएट फ्लावर्स है। तो अगेन ये ऑप्शन भी उसका मतलब डाउट उसका सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन वी हैव selects bouquet of roses and thinks her mom might like it. Then अभी यहाँ पे पूरे फ्लावर के डिटेल्स दे दो। राइट? यस। अगेन यहाँ पे क्या है, शी इज सिलेक्टिंग। ओके, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन है, इफ शी इज डूइंग कस्टमाइजेशन तो उसको क्वेश्चन आएगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस कितने पड़ सकते चार्जेस, हैं हाँ। मुझे। करेक्ट? दैट इज व्हाट शी विल ऑब्वियसली हैव। तो वट एवर लाइक प्राइजेस आप वहां पे दे सकते हो, प्राइजेस एज पर डजन्स ऑफ फ्लावर। ओके, जो जितने भी डजन फ्लावर लोगे तो एज पर अकॉर्डिंग टू दैट द प्राइजेस विल बी देयर। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप थीम के बारे में बात कर रहे थे तो वैसे ही अभी वो सिलेक्ट कर रही है, करेक्ट, सिलेक्ट हो गया ऑलमोस्ट उसके। तो यहाँ पे आप प्रीमियम गिफ्ट ऑप्शन का उसको ऑप्शन दे दो, प्रीमियम गिफ्ट्स, कि वो ये ले सकती है। कार्ड्स वगैरह का ऑप्शन दे दो कि कार्ड्स खरीद लो, हमारा मतलब आप बर्थडे के लिए ले रहे हो तो कार्ड्स लो, प्रीमियम गिफ्ट रैपिंग वगैरह दो, जो भी पेपर्स वगैरह आएंगे तो यहाँ पे दो। नोट लिख सकते हो कुछ ऐसा। थीम, यस, कार्ड्स एंड नोट्स। तो ये सब ये वाले स्टेप पे आप दे सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, शी चेक्स डिटेल इंफॉर्मेशन एंड लुक्स आउट फॉर डिलीवरी ऑप्शन। सो डिलीवरी टाइम एंड ऑल ठीक है। एड्रेस डिटेल्स, अभी लोकेशन तो ऑलरेडी फेच्ड है उसका, बट देन शील हैव टू गिव आउट एड्रेस डिटेल्स एंड ऑल। डिटेल्स। अगेन, अवेलेबिलिटी। yes, 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 tell me what अवेलेबिलिटी availability of। मतलब मतलब अवेलेबल है कि नहीं, मतलब वही बात। ओके, वो आप इस मोमेंट पे दे दो कि availability of flowers। इसमें हम डिलीवरी के वक्त वो ये भी देख सकते हैं कि कुछ टाइम स्लॉट ऑप्शन है क्या, कि नेक्स्ट डे ऑर्डर करिए या थर्सडे ऐसे कुछ ऑर्डर करिए तो होता है ना 7 to 10 में डिलीवर करना है, टाइम स्लॉट ऑप्शन। ओके, टाइम स्लॉट ऑप्शन, यस, यू कैन हैव दैट slot option। या ठीक है, she can schedule her, हाँ, yes, she डिलीवरी। can schedule, yes, her delivery, right? Time slot option, scheduling। ओके, schedule का स्पेलिंग क्या है? scheduling, SCH। HCH, still wrong। मेरी scheduling, यही schedule है मैम। time ऑप्शन। ठीक है, ये ना आप इसमें दे दो आइडियाज में, बिकॉज दिस इज अ गुड आइडिया। टाइम स्केड्यूल का ऑप्शन आ सकता है। करेक्ट? और ये भी हो सकता है कि रिसीविंग पर्सन कोई अलग हो सकता है, तो उसके भी डिटेल्स डालते हैं ना। कर
ओके अगर उसकी मम्मी दूसरे जगह पे रह रही है या दूसरे सिटी में रह रही है तो वो रिसीव करेगी, तो रिसीवर डिटेल्स डाल सकते हैं। हाँ ओके परफेक्ट दिस इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट इफ वो काम कर रही है बट वो अलग सिटी में है एंड हर मॉम हम्म somewhere else like she's somewhere else then you gotta put the like details of all the receiving person कौन receive करेगा उसका contact number and all this is a हम्म very excellent point yes हाँ, डिलीवरी इंफॉर्मेशन जो एक होता है, हाँ। हाँ we have written here ना like delivery time एड्रेस डिटेल। address detail नहीं, वो वही जो आप जो कह रहे हाँ हो कि ये जो रिसीविंग वाला जो, हाँ। हाँ so जो भी है डिटेल्स ऑफ रिसीविंग सब तो मतलब आप जब एड्रेस डालोगे तो रिसीविंग पर्सन का ही एड्रेस डालोगे करेक्ट एंड आप देख सकते हो मतलब आप याद मतलब इफ यू आर डूइंग शॉपिंग ऑनलाइन तो आपको हमेशा यहाँ पे आप जब भी कुछ भी चेकआउट करने जाते हो ना आप जब ऐसे स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस आते हैं हम्म। है ना हमेशा ये आपने प्रोडक्ट व्यू देखा होगा में लाइक हाँ टू ऐड भी आता है, और यस कुछ उसमें एडिशंस। करेक्ट आपका मन बदल जाता है कभी कभी कि यार वाह ये वाला ऑप्शन तो बहुत सुंदर दिख रहा है आई शुड गो विद दिस वन तो सिमिलर प्रोडक्ट के ऑप्शंस हमेशा सजेस्ट करना चाहिए यूजर्स को दैट वे हम्म यू नो परचेसिंग पावर बढ़ती है लोगों की करेक्ट would there be any question over here कि और let's इसमें भी, हाँ हाँ, tell me और इसमें भी हम ये डाल सकते हैं ना मैम कि कुछ एडिशनल वो बुके में आपको ऐड करना है क्या, हम इतने में ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई ये तो फिर और वही होगा ना फ्लावर ऐड आपके, कर सकते हैं या लीव्स yeah I ऐड कर think we सकते have वो तो written that कस्टमाइजेशन में आ जाएगा ना वो हाँ तो। हैं। नहीं, कस्टमर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हम और ऐड कर सकते हैं ऐसा कुछ वो डालते हैं ना बाद में फिर, ओके वो भी ऑप्शन रख सकते हैं मुझे लगता है। ओके हम्म ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, बट जैसे जैसे और हम फिर कुछ भी ऐड करते हैं फूड आइटम डिलीवरी के लिए, तो वो बोलते हैं ना कि साइड्स ऐड कुछ करो ऐड हाँ करना है क्या, ड्रिंक्स कुछ ऐड करना है क्या, वैसा। okay नहीं, what we वो can तो do फिर is वो तो फिर वही हो गया ना, अगर डिलीवरी के लिए अगर है तो फिर उसमें कैसे, मतलब अगर एक बार प्रोडक्ट कहते हैं ना ऑर्डर के लिए रेडी हो जाता है तो उसमें फिर नहीं, क्या डिलीवरी कस्टमाइज। पेजेस पे ही आता है। yes I get her point हाँ। let's you have to think about both the scenarios if Priya हम्म doesn't go with the customization and she's going हम्म only with 1 dozen of हम्म bouquet roses हम्म only red roses तो हम्म उसको मतलब ये ऑप्शन सबके लिए ओपन रख सकते हैं अपन कि यू कैन डू एड ऑन्स कि आप चलो परफ्यूम खरीद लो हम्म उसके साथ यू नो कुछ लाइक हम्म सेंटेड कैंडल्स खरीद लो उसके साथ तो एकदम ऐसा हम्म पैकेज बन जाएगा व्हाट इफ शी डजंट गो हम्म विद तो मे बी शी कैन गिव गेट सम एड ऑन्स कि चलो फिर एड ऑन्स। वो सोचेगी कि मैंने थीम्स के साथ गई नहीं हूँ मैं एक बेसिक पैकेज मतलब बेसिक परचेस कर रही हूँ तो मे बी आई कैन डू सम एड ऑन्स सो अगेन यस ये आइडियाज में है फिर से ठीक है एड ऑन्स ग्रेट एनी क्वेश्चंस ओके क्वेश्चन का आंसर अपन ने ऑलरेडी दिया है बट लाइक विल दे डिलीवर ऑन टाइम कैन बी अ क्वेश्चन हम्म तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी बोले कि डिलीवरी टाइम कितना लगेगा ETA वगैरह उसका सब वहाँ पे इंटरफेस में रहेगा तो इफ इवन इफ शी गेट्स दिस क्वेश्चन सब डिटेल्स अपन ने यहाँ पे डाल के रखे हैं तो great, ठीक है एंड नाउ फाइनली वी हैव शी प्लेसेस द ऑर्डर तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आई कैन ऐड लाइक वी कैन ऐड दैट इज लाइक ट्रैक द ऑर्डर शी कैन ट्रैक कहाँ पे रीच हुआ है कहाँ कब आएगा वगैरह वगैरह पेमेंट ऑप्शन यही यस पेज पे आएगा। ship is placing the order तो maybe we can give payment option over here हम्म delivery time and payment mode हम्म यहाँ पे you can talk कि जैसे अपन थैंक यू मैसेज दे सकते हैं
और थैंक यू थैंक यू फॉर मैसेज के प्लेसिंग द साथ, ऑर्डर। हाँ, थैंक यू मैसेज के साथ रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, राइट? रिवॉर्ड्स, ठीक है, हाँ। अब फिर से आओगे, फिर से परचेस करोगे, तो वी हैव सम रिवॉर्ड्स, कूपन्स, all that stuff for you. You can redeem anytime, or else we can give a valid date. 1 week में redeem कर सकते हो आप कभी भी. तो again, so that we will make sure that the user comes again, correct? और फीडबैक ये भी देते हैं ना इसमें, मतलब हाँ, how do you like our service and all? तो she can rate. तो रेटिंग ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ और पे. हाँ, ऑर्डर का जो प्रोसेस है उसके लिए। यस, हम्म, ग्रेट. सो ये सब कमेंट्स में आएगा, बिकॉज दिस इज बेसिक स्टफ. इसमें कोई आइडिया अपन यूज नहीं किया है, तो कमेंट्स में डाल दो ये सब. हम्म, ठीक है, हम्म, ऑलराइट. सो ये है योर कंप्लीट यूजर सिनेरियो एक्सरसाइज. हम्म, यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू. आपका जो भी सिनेरियो या गोल है यूजर का, यू हैव टू राइट दिस डाउन ओवर हियर. ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लीजेंड्स में आप ये डाल सकते हो, ठीक है, कि ये सब आप कलर कोड यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, किस चीज के लिए है. हम्म, ग्रीन में है हम्म, तो कमेंट्स है, ऐसा. तो ये आप आपके हिसाब से कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कलर्स. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, आपको एग्जाम में ही करना है. अभी देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी डोंट हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस. तो आप यही शेप्स लेके करो, स्टेप्स लिखो, एंड देन इवेल्युएट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ए यूजर. ठीक है. ओके, ओके। एंड देन आपको जब ये डालना होगा इसमें, आपके केस स्टडी के टेम्पलेट में, तो आप ऐसे का ऐसा एक्सरसाइज वहां पे डाल सकते हो. कलर थीम आपका जो भी होगा वहां पे, उसमें एडजस्ट करके आप वहां पे रख दो, ऐसा हो जाएगा. ओके, So this is your assignment for today. We have a user scenario assignment, which will be dependent on your own problem statement. And I यस, want evaluation like this. I want to see all these 3 legends, okay? और इस इनमें ही आप इवेल्युएट कर रहे हो. कलर चेंज कर रहे हो तो मेंशन करो मेरे लिए, मेरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कौन सा क्या है. ओके, ओके, एनी डाउट्स? नो मैम, ओके, व्हाट अबाउट तन्मय? नो मैम, नो मैम। Okay, all right. Now what we'll do is I'll quickly explain you about storyboarding exercise. अभी आप क्या करो, आप आपकी क्रिएटिव साइड बाहर लाओ, ठीक है. क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, आप एक स्टोरी क्रिएट करो बहुत अच्छी सी बैकग्राउंड पे. एंड क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ, अगर आपकी स्केचिंग वगैरह अच्छी है, आपको आती है, देन यू कैन स्केच दिस आउट. ओके. So we let's say what story I can make is Priya wants to buy flowers for her mom's birthday. तो अभी मैं एक सिनेरियो क्रिएट करती हूँ पूरा का पूरा, जैसे कोई मूवी चल रही है, मूवी का कोई सीन चल रहा है. तो Priya is sitting in her office and this is the scenario I'm telling, okay? So Priya is sitting in her office and she suddenly remembers that it's her mom's birthday today and she has forgotten to buy gifts for her mom, correct? And she explains this scenario to her colleague. Her colleague suggests her to be like to download Flower app, and her colleagues tell ki they have pretty good options and premium gift options like FNP options you get, and within 10 to 15 minutes you can have those bouquets delivered at your doorsteps, right? So you can try that option, her colleagues tells her. So then the cut to next scenario is you can show illustration where Priya is holding her phone, downloading the Flower app, going into the interface, trying out a premium gift option with little like short pastry, written happy birthday and candles and all, and a very good bouquet of roses and all. Okay. So she's doing all those process and she's placing the order. So ये story यहाँ पे आ जाती है. Then Priya reaches home, and while she is reaching home, she is also checking where the delivery guy is there. Like she can receive it by her own, and then she can gift it to her mom. So then she comes home within the time the delivery boy comes at home, and she gives her the gifts to her mom, and they celebrate in their like little world. They celebrate all the birthday and all, and her mom is happy. Her mom, you can show like her mom is loving the gift and all.
तो इस तरीके के ये सपोज एक स्टोरी है। तो अभी इसका बस अपने को क्या करना है, स्केच बनाना है। सो यू कैन गो टू द टेम्पलेट्स अगेन, इसका टेम्पलेट मिलता है, तो विल सर्च फॉर स्टोरी बोर्डिंग। सो दिस इज स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट, you can add this template. So okay, ये सब आप डिलीट कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं है। ओके, सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट टेम्पलेट। अभी ये जो कार्ड्स है, यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन डालने हैं। इफ यू आर गुड, यू गाइज आर गुड एट स्केचिंग, यू कैन स्केच इट आउट, या फिर आप गूगल पे इलिस्ट्रेशंस देखो, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा इलिस्ट्रेशंस। आप स्टोरी सेट बाय फ्री पिक, स्टोरी सेट करके एक है, यू कैन चेक आउट देयर इलिस्ट्रेशंस, फ्री आते हैं कुछ कुछ। स्टोरी सेट बाय फ्री पिक, तो ये एक है इलिस्ट्रेशन के लिए। बाकी बहुत सारे प्लगइन्स या फिर बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पे इलिस्ट्रेशंस मिलेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली इलिस्ट्रेशंस ले सकते हो। इसमें इलिस्ट्रेशंस डालने हैं, शो दैट प्रिया इज सिटिंग इन हर ऑफिस एंड देन next scenario is she's talking to her colleague, next scenario is she is downloading the flower app, next scenario is she's placing the order, next scenario she is traveling to home, next scenario she is receiving the flowers from the delivery boy. Over here she is entering the house and her mom is there, and the last scenario they're celebrating the birthday. तो इस तरीके से स्केचेस बनाने हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमिक्स के जैसे यहाँ पे लाइंस है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्टोरी, लाइक नरेट योर स्टोरी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। बस इतना ही है। आप लेट मी जस्ट चेक, बिहांस पे भी है बहुत सारे स्टोरी बोर्डिंग एक्सरसाइजेस किए हैं लोगों ने, तो वो भी आप देख लो। तो यू कैन सी ये स्केचेस है, सीन 1 सीन 2 पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड यू कैन सी जैसे प्रिया और उसके कलीग बातें कर रहे हैं, तो आप उसमें डायलॉग्स भी डाल दो, उनके सिनेरियो में डायलॉग्स डाल दो कि ठीक है दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, नीचे नरेट करो कि ऐसा ऐसा कन्वर्सेशन है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस स्टोरी बोर्ड। ये उसके बाद ही होगा, सिनेरियो के बाद ही होगा स्टोरी बोर्ड। Okay. एनी डाउट्स? ओके। नहीं मैम, ट्राई करेंगे। ओके ग्रेट, ठीक है। um what about other exercises? Are you guys doing those? हाँ, एक्चुअली मेरा ना मैम वो कंप्यूटर एनालिसिस यूजर पर्सोना तक हुआ है, और बाकी का बाकी है मेरा। तो मैं कर Oh, रही हूँ इस पे काम। एक्चुअली मैं मेरे होम टाउन आई थी तो थोड़ा बिजी चल रही थी, तो अभी कर लूंगी मैं वो ओके ओके ओके, ठीक लास्ट है। असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट साथ में कर लूंगी। हाँ ठीक है, इतना ही बोलना है कि जितना भी आप कर रहे हो हम्म। ट्राई सेंडिंग इट टू मी, मतलब एक यस। एक्सरसाइज हो गया तो मेरे से फीडबैक ले लो आप। ओके, ठीक है, मैं वो भेज देती हूँ आपको आज। यस ठीक है, चलेगा, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी। यस। ओके। और मैम वो शुभम, मैंने मैसेज ड्रॉप किया था उसको, तो हाँ एक्चुअली वो ऑफिस में है अभी तक, इसीलिए नहीं ज्वाइन कर। और ओके ओके, राह टेल हिम टू और इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ओके। और गौरव। राहुल भी वो महाकुंभ में गया है, ओह, अरे क्या बात बाप रे। है, तो वेरी नाइस। वो रिकॉर्डिंग सेशंस अटेंड करेगा थोड़े दिन हाँ तक। हाँ, राहुल ने इन्फॉर्म किया था कि ही हाँ इज हाँ ट्रैवलिंग, सो दैट्स फाइन, हाँ आई नो हाँ। अबाउट हिम। हम्म। मेरे घर पे भी बात हो रही है जाने की। Okay, guys, then I'll end the session. यस मैम, Meet on थैंक Friday. यू। Okay, thank ओके you. Bye जी। bye. बाय।